Hello everyone. Let's discuss one small point, licensing authority and customs collector. Along with licensing authority, we will see controlling authority in the executive body. So what are these? After watching this video, you will be able to understand the eligibility for the functions of licensing authority, controlling authority and custom collector under Drug and Cosmetic Act 1940 and rules made thereunder. So already we have started in the previous video. We have seen administrative bodies are divided mainly into three categories: advisory, analytical and executive. So in advisory we have seen the video on Drug Technical Advisory Board, DTAB and DCC. Then in analytical section separately we have seen Central Drug Laboratory and Drug Control Laboratories in the states we have seen. And separately we have seen government analyst, what are the duties and qualification for the same. Now the third administrative body is executive body, and in that again three segments or three authorities are there. Number one is licensing authority and controlling authority, number two drug inspector, and number three customs collector. So in this video we will focus on the licensing authority, drugs inspector and custom collector. Now we will focus first on licensing authority, controlling authority and custom collector. We will see drug inspector separately in the next video. So let's see what is licensing authority. So it is appointed, this authority is appointed by central government. Central government appoints an authority called licensing authority to issue license for import of drugs. So if the license required is for import of drug, it will be issued by licensing authority which is appointed by the central government. इसका मतलब क्या है? अगर हम import या export के बारे में बिजनेस कर रहे हैं, इसके हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका जो लाइसेंस है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उसे कौन अपॉइंट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. स्टेट गवर्नमेंट का इसमें क्या रहता है कंट्रीब्यूशन? अगर ये आउट ऑफ इंडिया है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका कंट्रोल करेगी. इस पर पूरा अमल किस लाइसेंसिंग अथॉरिटी का किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. सो एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, इफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज टू इशू लाइसेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग, देन हु विल अपॉइंट दिस अथॉरिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट. नाउ इफ the case is of manufacture, sale and distribution of drug, then who will appoint for the specific area? That specific government will appoint. That means each state government appoints licensing authorities to issue licenses for manufacture, sale, distribution of drugs or cosmetics for specified area. मतलब कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन डिसाइड करेगा? मतलब लाइसेंसिंग अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. और अगर मैन्युफैक्चर, सेल या डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस स्टेट गवर्नमेंट करेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट. सो दीज आर टू डिफरेंशिएटिंग एंड क्वेश्चंस फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए. The licensing authority have the power to issue or refuse or cancel or suspend the license issued by them. एक बार अगर वो इशू कर देते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको लाइसेंस देते हैं, तो ये इशू किया हुआ लाइसेंस मे बी कैंसिल हो सकता है, मे बी सस्पेंड हो सकता है, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाइल इशूइंग द लाइसेंस. जो भी लाइसेंस के मुताबिक जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करना है वो अगर आप नहीं करते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या फिर आपको सस्पेंड करना पड़ेगा. मे बी at the time of application and at the time of issue of license, अगर आप पूरी डॉक्यूमेंट्री या फिर कुछ प्रीमाइसेस की अगर आप फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हो, तभी लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपका लाइसेंस रिफ्यूज कर सकती है, मतलब आपको देने के लिए मना कर सकती है. इशू करना या ना करना, मतलब कि रिफ्यूज करना, ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी. और ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी किस बुनियाद पर डिसाइड करेगी, किस बेस पर डिसाइड करेगी? आप जो भी क्राइटेरिया या रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करते हैं या नहीं करते. अगर नहीं करते हो तो ये रिफ्यूज कर सकते हैं आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता. ये सब तय करने वाली लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन अपॉइंट करता है, कौन ये इसकी अपॉइंटमेंट करता है? अगर ये इंपोर्ट के बारे में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है. अगर ये मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है तो रिस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट इनका अपॉइंटमेंट करेगी. द लाइसेंसिंग अथॉरिटी is having all
authority is having rights, power to cancel, to refuse, to suspend or to issue the license. So whatever decision taken, it may be challenged in the court of law. हम इसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उनका डिसीजन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो दैट इज लाइसेंसिंग अथॉरिटी. नाउ व्हाट इज द क्वालिफिकेशन? इसके लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप आगे जाकर लाइसेंसिंग अथॉरिटी बन सकते हो, किसी को लाइसेंस इश्यू या रिफ्यूज या सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हो. सो नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द एक्ट अनलेस, मतलब कि नीचे दिए गए अगर क्वालिफिकेशन हो तभी लाइसेंसिंग अथॉरिटी बन सकते हो आप, अगर नहीं हो तो आपको ये नहीं मिल सकता. नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड एज अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी अनलेस. आपके पास क्या होना चाहिए? इफ ही इज अ डिग्री, ही इज अ ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्मा केमिस्ट्री और इन मेडिसिन, स्पेशलाइजेशन विथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉज. मतलब कि आपका कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन फार्मेसी, फार्मेसी में होनी चाहिए, या फिर फार्मा केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर मेडिसिन में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में तब आप एलिजिबल हो. मेडिसिन में मतलब कि आप इन शॉर्ट डॉक्टर हो और आपका स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी होना चाहिए. या फिर आपकी डिग्री माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हो तब भी चलेगा. फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में एस्टेब्लिश की गई या फिर अप्रूव की गई यूनिवर्सिटी में से आपको ये डिग्री होनी चाहिए. डिग्री हो गई, अब एक्सपीरियंस कितना चाहिए? He has an experience in the manufacture or testing of drugs or enforcement of the provision of the act for minimum period of 5 years. आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद? कम से कम 5 साल का आपको मैन्युफैक्चर या टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स के एक्सपीरियंस होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो. डिग्री प्लस एक्सपीरियंस, देन यू आर एलिजिबल फॉर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी. प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या है देखिए, द रिक्वायरमेंट एज टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशन शैल नॉट अप्लाई टू इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट. मतलब कि ये जो ऊपर दिए गए एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये किनको नहीं एप्लीकेबल होती? ऑलरेडी इंस्पेक्टर है, अपॉइंटेड है इस एक्ट के अंतर्गत, एंड हु आर इन द पोजीशन ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स 9th अमेंडमेंट रूल 1989. मतलब के ऑलरेडी अगर कोई पर्सन इंस्पेक्टर पोस्ट से अपॉइंटेड है, वो ऑलरेडी इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इन्हें, और ये तब से पोजीशन में है इनकी, कब से? जिससे इससे पहले ये रूल आता है अमेंडमेंट का. कौन सा अमेंडमेंट रूल? ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स 9th अमेंडमेंट रूल 1989. इससे पहले ये ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है. तो इन्हें अगर ये ऊपर दिए गए क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं भी है, फिर भी ये इनको एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये पहले से इंस्पेक्टर चुने गए हैं, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो इनका नुकसान या इनका कुछ लॉस नहीं होगा. ये 9th अमेंडमेंट से पहले इंस्पेक्टर है तो ये बने रहेंगे, इनके लिए एलिजिबिलिटी एप्लीकेबल नहीं है. नाउ व्हाट अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी? अगर आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी मीन्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम है इश्यू करना या रिफ्यूज करना, कैंसल या सस्पेंड करना. लेकिन कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करती है? वंस लाइसेंस इज इश्यूड टू चेक वेदर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड और नॉट. जो भी रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं लाइसेंस के, वो फॉलो होते हैं या नहीं होते, ये किसका काम है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी इस पर कंट्रोल करती है, इस पर अमल करती है. सो इसके लिए भी क्वालिफिकेशंस सेम है जो हमने लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए देखे थे. यही एक डिग्री और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है 89 से पहले, उनके लिए ये क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है. और सेम क्वालिफिकेशन है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज कस्टम्स कलेक्टर. हमने अब तक देखा लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी. नाउ द कस्टम्स कलेक्टर, सेम क्वालिफिकेशन है इनके लिए भी. अगर ये आपको कस्टम्स कलेक्टर होना है तो यही क्वालिफिकेशन चाहिए. बट क्या डिफरेंस है? द लॉ रिलेटिंग टू द कस्टम्स एंड गुड्स, ऐसे नियम जो कुछ गुड्स मतलब कुछ सुविधा है या फिर कुछ वस्तु जिसे हम गुड्स कहते हैं, इम्पोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड, जिनका इम्पोर्ट करना, देश में इनका आयात करना, अगर ये प्रोहिबिटेड है मतलब नहीं करते हैं, मना है, ये करना मना है, अगर ऐसे चीज़ों का इम्पोर्ट होता है भारत में, इज द टाइम बीइंग एप्लीकेबल फॉर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. जिस इस एक्ट के तहत कुछ चीज़ों का, ड्रग्स या कॉस्मेटिक का, गुड्स का
इंपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है, मना है, ये इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो कस्टम कलेक्टर का क्या जॉब है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द कस्टम कलेक्टर्स और एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, ऑफिस का कुछ भी कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन मे डिटेन एनी इंपोर्टेड पैकेज, जो भी पैकेज एयरपोर्ट पे या पोर्ट पे या बाय रोड बॉर्डर पे आता है, अगर कस्टम्स कलेक्टर को ये लगता है, इनका काम कहाँ पे है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी का काम है लाइसेंस इशू करना ऑफिस में, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑल ओवर जहाँ पे भी लाइसेंस दिए गए हैं वहाँ पे चेक करना, वहाँ पे ऑब्जर्व करना और कंट्रोल करना। कस्टम्स कलेक्टर की अपॉइंटमेंट कहाँ पे रहेगी, जहाँ पे बॉर्डर्स आती है, मतलब जहाँ पे एयरपोर्ट पर बाहर से देशों से सामान या वस्तुएं या ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट किए जाते हैं, या फिर पोर्ट पे जो हम बंदर हवाई जहाज कहते हैं, या फिर हम समुंदर के जहाज कहते हैं, वहाँ से अगर कोई शिप से ट्रांसशिपमेंट होता है, अगर इस शिप से पोर्ट पर बंदर पर अगर कोई आयात होती है या फिर इंपोर्ट होता है, या फिर बाय रोड बॉर्डर रहती है दो राज्यों की या दो देशों की, वहाँ से अगर कुछ चीज़ें ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट किए जाते हैं, वहाँ पे इनकी ड्यूटी रहती है, वहाँ पे इनका काम रहता है। ये कस्टम्स कलेक्टर अगर इनको कोई शक हो तो ये डिटेन कर सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेड पैकेज है वो हम उनके कस्टडी में लेके वो ओपन कर सकते हैं और पूरा खोल के छानबीन कर सकते हैं, उनका टेस्टिंग कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। और अगर ऐसी चीज़ें वो है कि जो भी प्रोहिबिटेड है इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत, और ऐसी चीज़ें अगर इंपोर्ट किए जाती है, एनी रिपोर्ट सच डिटेंशन टू द ड्रग कंट्रोलर, तो ये क्या करेंगे, जो भी है इसका रिपोर्ट सीधा ड्रग कंट्रोलर टू द इंडिया इन्हें भेजेंगे, विच इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी। सो इफ रिक्वायर्ड फॉरवर्ड द सैंपल ऑफ सच ड्रग और कॉस्मेटिक टू CDL, अगर ज़रूरी लगता है, अगर ड्रग कंट्रोलर कहते हैं या फिर कस्टम्स कलेक्टर को ज़रूरी लगता है, तो इनमें से कुछ सैंपल CDL यानी कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को भेजा जा सकता है फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर ये प्रोहिबिटेड ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है तो। So that is the duty of customs collector. The qualification required is same for licensing authority, controlling authority and the customs collector. Customs collector की ड्यूटी कहाँ पे रहती है, जहाँ पे import किया जाता है। So that was about the licensing authority, the controlling authority and customs collector. We have seen in this video the executive body. Now the only one point in executive body is remaining, that is a drug inspector. We will see this in detail in next video. Thank you so much for watching the video.